امی ان سے لپٹ گئی تھیں اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ میں وہاں نہیں رکا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون کون تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھیں، مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں میکان کے انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لوبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہاں، ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اس کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا، وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھیں اور جو وہاں تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا، اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اس کی نانی بار بار غش کھا رہی تھی۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی۔ جو نہیں رو رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا نہ تھا، وہ بس ایک پارا پڑ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں۔ آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ ایک دم میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر میں وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی اور مجھ سے کہے گی اب میں کیا چاہتا ہوں۔ میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، میں اس قابل کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفن کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈالی تھی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا۔ تو مشل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے قہقہے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ مومانی مسلسل غشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی، وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی۔ اب سب کو ہی اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ میرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کیا ہے یا مشل ایسی ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے صحیح پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح اس وقت سختے میں آ کر رہ گیا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا تھا اور میرے پرخچے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، مگر اس طرح بغیر کچھ کہے کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا، میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا جیسے کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف نانی امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے، جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشل کا کمرہ بند تھا۔ مومانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئیں۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔
शोर की आवाज़ों पर बाकी मामू भी जमा हो गए थे। फिर अशर ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और जब वो अंदर दाखिल हुए तो वो उन्हीं के आलम में पड़ी हुई बमुश्किल सांस ले रही थी। वो सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे मगर वो वहाँ पहुँचने से पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे देखते ही उसकी मौत की तस्दीक कर दी थी। मामू ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके डेथ सर्टिफिकेट पर उसकी मौत का सबब हार्ट अटैक लिखवा दिया और पुलिस केस बनने नहीं दिया। सब लोगों को भी यही बताया गया, सिर्फ घर के लोगों को उसकी मौत की असल वजह का इल्म था और शायद ये चीज़ ही उनके लिए ज़्यादा तकलीफ देती कि उसने अपने हाथों अपनी जान ले ली थी। सोयम तक मुमानी की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और सब लोगों ने उसकी मौत को ज़हनी तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया था, मगर शायद अभी कुछ बाकी था। घर की मुलाजमा ने मशल को घर वालों के जाने के थोड़ी देर बाद मेहरीन के कमरे में जाते देखा था। वो देर तक वहाँ रही थी और इस दौरान कमरे से इन दोनों के झगड़े की आवाज़ें आती रही थी। मुलाजमा ने कमरे के पास जाकर बातें सुनने की कोशिश नहीं की, मगर उसने मामू को कहा था कि मशल जब ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी तो मेहरीन बीबी बहुत हंस रही थी और उनके हंसने पर मशल बीबी को और गुस्सा आया था। वो और ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलने लगी थी। फिर काफ़ी देर के बाद जब वो कमरे से निकली तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और ऐसा लगता था जैसे वो अभी रोने लगेंगी। अपने कमरे में जाने के लिए कुछ देर बाद वो नीचे आई थी और उन्होंने चौकीदार को कुछ खत घर के पास लगे लेटर बॉक्स पर डालने के लिए दिए थे और फिर वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो सोने जा रही है। मामू ने उसी वक्त मेहरीन को बुलवाया था और उससे पूछा था कि मशल की मौत वाली रात उन दोनों के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था। पहले तो उसने सिरे से इस बात से इनकार किया था और इन दोनों के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था, मगर जब मामू ने मुलाजमा को सारी बात बताने को कहा तो वो बेहद परेशान हो गई थी और कुछ भी नहीं बता सकी थी। सब लोग एकदम उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। वो सब उसे असल बात बताने पर मजबूर कर रहे थे मगर वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। वो सिर्फ ये कह रही थी कि मशल उससे नाराज़ थी, मगर क्यों नाराज़ थी ये उसने नहीं बताया था। मैं जानता था कि मशल उससे क्यों नाराज़ थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए मंगनी के एक हफ्ते के बाद उससे लड़ने गई होगी। बात यकीनन कुछ और होगी और बात क्या थी वो ये नहीं बता पा रही थी। अशर ने चौकीदार से इन ख़तों के बारे में पूछा था मगर वो भी उनके पते के बारे में कुछ नहीं बता सका। लेटर बॉक्स में ख़त भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें पोस्ट किए 30 दिन हो चुका था। अशर ने उसके कमरे की तलाशी ली थी मगर वहाँ से सिर्फ इसकी जली हुई डायरी बरामद हुई थी और वो जानता था कि उसने अपनी डायरी क्यों जलाई होगी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए ताकि कोई मुझे उसकी मौत का ज़िम्मेदार ना ठहरा सके। किसी को ये इल्म ना हो सके कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। अगर वो मेहरीन से नाराज़ होती तो कभी भी ये मंगनी ना होने देती। वो अपने बाप से मेरे लिए पसंदीदा का इजहार करती तो अकबर मामू मेरी अम्मी को मजबूर कर सकते थे कि वो मेहरीन को बहू ना बनाए और उसकी जगह मशल से मेरी शादी करें, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। यकीनन मेहरीन झूठ बोल रही थी। सबके इसरार के बावजूद उसने बताने से इनकार कर दिया था और अशर वो इस कदर तैश में आ गया था कि वो उसे शूट कर देना चाहता था। सब ने उसे पकड़ लिया और मेरा दिल चाहा था कि कोई उसे ना पकड़ता, वो उसे शूट करने देते। मेहरीन मर जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। अगर दुनिया को मशल के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मेहरीन के ना होने से क्या हो जाता। अगर तुम नहीं बताओगी कि तुमने मशल से क्या कहा था तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, अशर ने धमकी दी थी। लेकिन वो इसी तरह चुप रही थी और फिर अचानक अशर ने तेज़ी से जाकर उसका गला पकड़ लिया था। वो उसका गला दबा रहा था। सब उसे छुड़ाने के लिए भागे थे मगर मैं नहीं उठाता। मैं उसे क्यों बचाता? क्या उसने मशल को बचाया था? मामू अशर को खींच कर बाहर ले गए थे मगर वो उसे गालियाँ दे रहा था। वो बार बार ये कहता जा रहा था कि मैं इस कुतिया को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये नागिन है, सारी उम्र ये हमारा खाती रही और उसने मेरी बहन को डस लिया, मैं उसे मार दूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल गया और उस रात मैंने अम्मी से कहा था मैं मेहरीन से शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। उन्होंने उसकी सफाई देने की कोशिश की थी। असवद इस बेचारी का क्या कसूर है? सब उसके दुश्मन हो रहे हैं। अगर तुम भी, मैंने उनकी बात कर दी। मशल का क्या कसूर था? उसे किस बात की सज़ा मिली है? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी वो मर गई और ये तो ज़िंदा है। इसे क्या फ़र्क पड़ा है लोगों के दुश्मन होने से? मैं इससे शादी नहीं करूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उनसे ये कहने के बाद सीधा मेहरीन के पास गया था। उसका दरवाज़ा अध खुला था। मैं दस्तक दिए बगैर दाखिल हो गया और वो एक कोने में बैठी हुई थी। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने उसे कैसे मारा? मैं सिर्फ वो अंगूठी लेने आया हूँ जो तुम्हारे हाथ में है और ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हारे इस भयानक चेहरे और किरदार को बर्दाश्त कर सके। लोग ठीक कहते हैं, बाहर से खूबसूरत वही होते हैं जो अंदर से खूबसूरत हो, और जो अंदर से खूबसूरत ना हो खुदा उन्हें ज़ाहिरी खूबसूरती भी नहीं देता, जैसे कि तुम। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला था मगर फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर मेरी तरफ बढ़ा दी। एक झटके से उससे अंगूठी लेकर मैं बाहर निकल आया। ये वही कमरा था जिसमें उसने मशल को मरने पर मजबूर किया था।
जहाँ उसने मशल को कुछ ऐसा कहा था कि वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो गई थी। अगली सुबह मैं वापस कराची लौट आया। वहाँ रहकर अब करना भी क्या था, वहाँ बचा ही क्या था। अम्मी अभी मामू के घर पर ही थी। उन्हें मशल के 10वें के बाद आना था। इस शहर से वापस आकर आज़ादी का एहसास हुआ था, वरना मुझे लगता था जैसे हर वक्त कोई चीज़ मुझे घेरे रखती है, जैसे हर वक्त कोई मुझ पर हंसता रहता है। और यहाँ आकर मुझे लगा था जैसे अब मैं सांस ले सकता हूँ। वापस आने के अगले दिन बाद मैंने ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया था। पूरा दिन ऑफ़िस गुजारने के बाद मैं शाम को वापस आया था। स्टडी में आने के बाद मैं स्टडी टेबल पर रखी हुई गुज़िश्ता दिनों की डाक देख रहा था। एक लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मेरा सांस रुक गया। मैं इस तहरीर को लाखों में पहचान सकता था। वो मशल के हाथों से लिखा हुआ पता था। मैंने बेताबी से लिफाफा खोला। एक रुक्का निकलकर टेबल पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया। उसकी आखिरी तहरीर मेरे सामने थी। असवद अली, मैं जो हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ, आज पहली बार तुम्हें कोई दुआ नहीं दूंगी। ना ये कहूँगी कि तुम हमेशा सलामत रहो और ना ये कि तुम खुश रहो और लंबे अरसे तक जियो भी। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम पर एतबार कैसे किया। मैं तो कभी किसी से धोखा नहीं खाती थी। मुझे तो ये फ़ख्र था कि मुझे लोगों की पहचान है। मैं चेहरे से उन्हें जान लेने का दावा करती थी। फिर मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब तुम्हारे जैसा सांप अपनी आस्तीन में पाल लिया। मानती हूँ ज़िंदगी में पहली बार इतराफ़ कर रही हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बल्कि पागल हूँ। और ये जो सच्चाई और अच्छाई के फंदे मैंने अपने गले में डाल रखे हैं ना, अब ये ही मुझे मार डालेंगे। मेरी सच्चाई कहाँ मेरे काम आई और मेरी अच्छाइयों ने कब मुझे नुकसान से बचाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो कभी किसी को फ़रेब नहीं दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आखिर क्यों आ गए? तुम्हें मैंने क्या तकलीफ़ पहुंचाई थी? आज महरीन ने मुझे बताया था कि तुम शुरू से ही उससे मोहब्बत करते थे। मेरे साथ सिर्फ उसे खुश करने के लिए अफेयर चला रहे थे। उसने मुझे तुम्हारे हाथ से लिखे गए खतूत दिखाए थे जिनमें तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। तुमने लिखा था कि मुझे तमाशा बनाकर तुम्हें उसके लिए खुशी हो रही है क्योंकि तुमने महरीन को खुश कर दिया है। हाँ, वाकई तुमने मुझे तमाशा बना दिया है, मगर तुम खुद भी एक दिन तमाशा बन जाओगे, क्योंकि जिस महरीन के लिए तुमने मेरे साथ ये फ्रॉड किया वो भी तुमसे फ्रॉड कर रही है। उसने मंगनी तुम्हारे साथ ज़रूर की है, मगर शादी वो तुम्हारे साथ नहीं करेगी। वो शादी असफन से करेगी जिससे वो मोहब्बत करती है, और फिर तुम भी मेरी तरह खाली हाथ रह जाओगे। असफत, तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर क्यों? मैंने तो कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा था, कभी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुम जानते हो मैं महरीन से कितनी मोहब्बत करती थी। मैंने उसे हर नुकसान, हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे ही अपनी ज़िद और हसद की भट्टी में झोंक दिया। क्या मेरा गुनाह ये था कि मैं खूबसूरत हूँ और वो मामूली सूरत की मालिक है? जो खूबसूरत होते हैं क्या उन्हें मेरी तरह स्लेब पर चढ़ा दिया जाता है? क्या अच्छे लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धोखा खाना होता है? शायद ऐसा ही होता है। तुम दोनों सारी ज़िंदगी खुश रहो। महरीन किसी और से शादी करेगी तब भी खुश रहेगी, तुमसे शादी करेगी तब भी उसे सब कुछ मिल जाएगा। शौहर की मोहब्बत, इज़्ज़त, दौलत, औलाद, सुकून, खुशियाँ, चाहे वो इसकी मुस्तहिक हो या ना हो, पर काश उसे ये सब कुछ ना मिल पाता। तुमसे शादी करके भी वो हर चीज़ से महरूम रहे जैसे आज मैं महरूम हूँ। लेकिन अल्लाह क्या मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगा? हाँ, आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि मैं अब तुम दोनों के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही हूँ, और मैं तो किसी के सामने भी अब नज़र नहीं उठा पाऊँगी। वो हर एक को बता देगी कि उसने मुझे किस तरह बेवकूफ़ बनाया है, और लोग मुझ पर हंसेंगे। पूरे ख़ानदान वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मशल को अब मर ही जाना चाहिए। और तुम असवद अली, तुम वो थे जिसे मैंने चाहा था, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हाथ से कागज़ छूट गया, मैं कुर्सी से गिर पड़ा। सो वो इसलिए मर गई कि उसे लगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है, और ये बात उसे महरीन ने कही थी। तो मशल की ज़िंदगी की इस आखिरी रात को उसे क्या कहा गया था? मैं सर को हाथों में थामे वहाँ बैठा रहा। मेरी ज़िंदगी में महरीन कितनी बार शब खून मारेगी? आखिर कितनी बार? उसे ये झूठ बोलकर क्या मिला? क्यों उसने मशल को मरने पर मजबूर कर दिया? मेरा दिमाग सवालों से फट रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि महरीन को ऐसे देखते हुए अलाव में फेंक दूँ जहाँ वो जलती रहे, इतनी देर तक जलती रहे जब तक उसे अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाह याद ना आ जाए। उसने पता नहीं अपनी किस महरूमी का बदला लिया था, मगर क्या उसकी महरूमियों की ज़िम्मेदार मशल थी या क्या मैं उसका ज़िम्मेदार था? अगर मेरी ज़िंदगी में मशल को नहीं आना था तो अब महरीन की ज़िंदगी में भी कोई असफन नहीं आएगा। अगर मशल ज़िंदगी की हर चीज़ से महरूम हो गई थी तो वो भी हो जाएगी। मशल तो एक बार मरी थी, मगर महरीन बार बार मरेगी। मैंने अम्मी को लाहौर फ़ोन किया था और उन्हें कहा था कि मैं मंगनी बरकरार रखना चाहता हूँ। वो मेरे फ़ैसले पर हैरान रह गई थी। अभी कल ही तो मैं उन्हें मंगनी की अंगूठी देकर आया था, और आज मैं उन्हें कह रहा था कि मैं उससे मंगनी करना चाहता हूँ।
وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا، میں نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر میں نے انہیں فون نہیں کیا۔ مشعل کے 10ویں کے بعد وہ کراچی آ گئی تھیں، میں 10ویں پر نہیں گیا تھا۔ میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے ابھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی، وہ یہ بات مشعل کے چہلم کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ مشعل کے چہلم پر امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہ وہیں رہیں۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں، اب مجھے اس سے شادی کرنا ہے ہر قیمت پر، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود؟ تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، مجھے صرف اس سے شادی کرنا ہے، اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشعل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا۔ یہ لکھ کر رکھ جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار وہ ہے، پھر میں دیکھ لوں گا وہ خود کو کیسے بچاتی ہے۔ میں نے فون کا ریسیور پٹخ دیا تھا۔